Previously we have covered the theory of shaft, theory of keys, and also we have covered the design steps of the shaft for different formulas, different considerations. There are different formulas, and on that we have covered one numerical also. Now we have also covered the design steps of the sunk keys. Okay, now after covering the theory and the design steps of formulas, strength equations of the sunk keys, we'll take one numerical from the design of key and one numerical from the design of shaft in this lecture. Okay, I have listed all the questions which are asked recently in exam on this topic, design of keys. There are some theory questions and also the numericals on the keys. Okay, now starting 5 questions are the theory questions, and next last 2 are the numerical questions. Okay, in this this which I have ticked over here, this is the question from the G scheme and it is asked for 4 marks. You can see these 2 questions. We'll solve one question over here. Okay, in this we'll see the first question. You can note down these questions and try to solve on your own also, and you can make the notes on these my pages, from these my pages. Okay, 45 millimeter diameter shaft is made of steel with yield strength of 400 Newton per millimeter square. A key of size 14 millimeter wide and 9 millimeter thick, made of steel with yield strength of 340 Newton per millimeter square. Okay, so this strength is given for the key material. The before this strength was for the shaft material, and both are the yield strengths. Okay, the yield strength for the shaft material is 400 Newton per millimeter square, and yield strength for the key material is 340 Newton per millimeter square. Now some dimensions of the key are given, like width is given 14 millimeter and thickness of the key is given 9 millimeter. So I have written all the given data which are given in the question, and factor of safety is also given. It is given for given as 2. Okay, and we have to use the maximum shear stress theory for solving this numerical. We have to calculate the length of the key. Question is for the length of the key. Now we have 2 formulas for the length of the key. One formula is when we will consider the shear failure of the key, and the second formula is for the crushing failure of the key. Okay, so for using those formulas we need the different datas. First we will derive those datas from these given data. We need the shear stress of the key, we need the crushing stress of the key material. Okay, now we need the torque transmitted through the shaft, capital letter T. Okay, because that also come in the formula of in the formulas of key. Okay, if you want to see those formulas, the formulas from the design of key. Okay, these are the formulas from the design of key. In this formula, the T, capital letter T, the maximum torque transmitted, or this is T, and here the tau comes, the shear stress value, permissible shear stress value for the key material, and the crushing stress value for the key material. The diameter of the shaft is already given in the question, small letter d. It is given, we have not written over here. The diameter of the shaft is given 45 millimeter diameter. Okay, now this is small letter d. It is given 45 millimeter. Okay, so in these formulas W is given, T is given, D is given. T is not given, tau and sigma ck के लिए डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बल्कि yield values are given. Now how to derive the maximum permissible shear and crushing stresses for the key material from these given yield strength. Okay, and how to get the capital letter T from this yield strength given for the shaft material, because there is no torque and RPM is given, power or RPM is given, so we can derive from there. T वहाँ से मिल सकता था if power and RPM is not given then, but it is not given in the question. Okay, so what we'll do, we'll use the formula of T, the formula from the design of shaft. Okay, now first we'll see the different strength for the shaft material and the key material. Okay, so we need the shear stress, permissible shear stress for shaft.
Okay, now this is the formula that what is the relation between the yield strength and the shear strength at the yield point, and that is tau at yield is direct stress at yield divided by 2. This is the formula. You have to remember this formula. You can apply this formula anywhere in the designs. Okay, so tau y is equal to, this will become 400 divided by 2, so this will be 200. Now this is shear stress at permissible value. Now from maximum shear stress theory, what the maximum shear stress theory says, that the tau maximum permissible shear stress will be equal to tau yield divided by factor of safety if it is given in the equation. Okay, अगर factor of safety दिया हुआ तो you have to consider that also. So it is given in the equation and it is 2. So tau max for shaft, this is for shaft material, 100 Newton per millimeter square. Now similarly we will derive the tau max for the key material. Okay, so similarly for key, yield strength will shear stress value at yield point will be direct stress at yield divided by 2. So for key it is given 340. So sorry, tau y is equal to 340 divided by 2. So this will come tau y 170 Newton per millimeter square, and tau max for key material will be, because here the factor of safety is given, we will consider this factor of safety for both key material as well as for the shaft material. So this will become 170 divided by 2. We will use our calculators. 170 divided by 2. This is 85. So tau for the key material is 85 Newton per millimeter square. Now we have to consider the crushing stress also. So there is no value given directly for the crushing stress, but I will tell you one more thing. The crushing stress is the value of the direct stress, and yield is also the direct stress. Okay, so we will consider this yield value for the key material 340 as the crushing stress value, and we will consider the factor of safety also. Okay, so maximum crushing stress, maximum permissible crushing stress for key will be sigma ck, for key will be sigma yield of key divided by factor of safety, and it is given 2. So this is 340 divided by 2. So sigma ck ka, the value for sigma ck for the key will be 170 Newton per millimeter square. So now we will have all the strengths which is required in the formula. Okay, now we will calculate the torque. We will calculate the torque transmitted through shaft, and for that we will use the formula T is equal to pi by 16 tau into d cube. Okay, now we have the tau for the shaft material, we have the diameter of the shaft. Okay, we can calculate T. So this will be pi by 16 into tau for the shaft material. Now here there are 2 taus for shaft as well as for the key. So for tau for the shaft it is 100. Okay, so we will put it 100, and 100 into the diameter of the shaft, that is 45 cube. Okay, so we will calculate tau 45 cube into 100 into pi divided by 16. Okay, so it is 1.789 into 10 raised to 6 Newton millimeter. As these dimensions are given in millimeter, diameter of the shaft is given in millimeter. We will check once again these values. 45 cube into 100 into pi divided by
16. 1.789 into 10 raised to 6 Newton millimeter. So this is the torque transmitted. Now we'll consider shear failure of key. Now what is the formula for shear failure of key? It is, you have already derived these formulas. So T is equal to tau into W into L into D by 2. Now we know T, we know tau for key. This formula is for key. So tau K लिख दो वहाँ पे, तो it will be for key. L is only unknown and D by 2. So we'll get 1 L from this and 1 L from the formula of crushing stress. We'll consider the maximum value as the safer value. Okay, so this is 1.789 into 10 raised to 6 is equal to tau for the key material. Tau, maximum tau for the key material is 85 Newton per millimeter square. So this is 85 into the width. Width of the key is given 14 millimeter into L into 45 divided by 2. Now from here we will calculate L. We can arrange this equation properly and we will calculate L into 2 divided by 85 into 14 into 45. So L मिल गया मुझे 66.82 millimeter. We can round this figure over here, or first we'll calculate the length of the key from the crushing formula. Okay, and then जो जिसको फाइनल करना है, जो मैक्सिमम वैल्यू जो सेफ वैल्यू है, उसको एक ही बार राउंड करेंगे. ओके, सो आई राइट डाउन दैट फार्मूला, दैट इज कंसीडर crushing failure of key. Now what is the formula for crushing? It is also, we have already derived. So that formula is T is equal to sigma Ck into L into T by 2 into D by 2. Okay, so T is 1.789 into 10 raised to 6 is equal to sigma Ck for the key material is 170 into L into thickness of the key is given, 9. Okay, so 9 divided by 2 into 45 divided by 2. So from here we'll get one more L. Okay, we'll calculate that L. 1.789 into 2 to the 4 into 10 raised to 6 divided by 170 into 9 into 45. Okay, so we got one more L and that is 103.93 millimeter. Now we'll compare these two L, one from the shear formula and one from the crushing formula. The bigger value is obtained from the formula of crush. Okay, so this will be the safer value of L. So we'll write down that the safe length of key which will sustain under shear as well as under crushing stress will be, it is 103. So we'll round this as 105, or you can round it to 104 millimeter, no matter. 105 millimeter. Generally even number पे हम round करते. 104 लो, 105 लो, both will be correct values. Okay, so 105 millimeter. So in this way we can solve the numerical from the design of key. We have to put two formulas, two main formulas, that is the formula from the shear failure consideration and formula from the crushing failure consideration. This is the question from the design of shaft asked in I-Scheme question paper for 6 marks. A hollow shaft is to be designed to transmit 600 kilowatt at 110 rpm. The maximum torque being 20% greater than the mean. The shear stress is not to exceed 63 megapascal
and angle of twist in a length of 3 meter not to exceed 1.4 degree. Find the external diameter of the shaft if the internal diameter of the diameter to external diameter is 3/8. ओके, प्रीवियसली जो हमने शाफ्ट पर जो इक्वेशन किया है, ठीक है, उसमें वो भी एक हॉलो शाफ्ट पर ही इक्वेशन था, बट वहाँ पे टी मैक्स या टी मीन कोई मैक्सिमम टॉर्क एंड कोई एवरेज टॉर्क ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था. तो जो भी टॉर्क हमको मिलता है वो हम मैक्सिमम कंसीडर करके सॉल्व करते हैं. बट इफ़ द रिलेशन बिटवीन द मैक्सिमम टॉर्क एंड द एवरेज टॉर्क और मीन टॉर्क इज गिवन, देन वी हैव टू कंसीडर दैट ऑल्सो. ओके, जो पावर का फॉर्मूला होता है उसमें जो टी होता है दैट इज़ टी मीन. ओके, एंड जो डिज़ाइन के फॉर्मूलेज होते हैं उसमें जो टॉर्क होता है दैट इज़ टी मैक्स. ठीक है, सो टी मीन ऑब्टेन करने के बाद टी मैक्स रखने के पहले हमको टी मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है, एंड दैट इज़ 20%. वो जो है टी मैक्स जो है वो एवरेज के 20% ग्रेटर है. ओके, एंड द shear stress value is given, it is 63 megapascal. Angle of twist is also given and it is given in degree. और जब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमको रेडियन में करना होता है, तो ये भी कन्वर्जन एक करना पड़ेगा. एंड जो जब भी एंगल ऑफ ट्विस्ट रहता है इट इज़ गिवन ऑलवेज विद द लेंथ ऑफ द शाफ्ट. ओके, एंड द लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज ऑल्सो गिवन. ये एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड लेंथ ऑफ शाफ्ट देखने के बाद हमको पता चलता है कि वी हैव टू कंसीडर द क्राइटेरिया ऑफ स्ट्रेंथ, दिस रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज ये वैल्यूज़ जो है वो रिजिडिटी के फॉर्मूलेज में आती है. एंड रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज ऑल्सो गिवन. तो ये एक और हिंट है कि हमको दो क्राइटेरिया से कैलकुलेट करना है डायमेंशंस ऑफ द शाफ्ट, वन फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट एंड सेकेंड फ्रॉम द रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट. ओके, नाउ हॉलो शाफ्ट है तो इंटरनल टू एक्सटर्नल डायमीटर का रिलेशन भी दिया हुआ है. ओके, नाउ आफ्टर रीडिंग दिस इक्वेशन we'll write down the given data in this. After reading this equation we have write down the given data. The power transmitted is given 600 kilowatt. okay, जब हम इसको पुट करते हैं फॉर्मूले में तो हम जनरली वैट्स में रखते हैं, तो इंटू 10⁻³ हो जाएगा. आरपीएम के लिए कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं, बिकॉज फॉर्मूले में जो वैल्यू है फॉर रोटेशन इट इज़ ऑलरेडी कंसिडर्ड इन आरपीएम. टी मैक्स इट इज़ गिवन 1.20, इट इज़ गिवन एक्चुअली 20% ऑफ टी मीन. ये मैंने कहाँ से डिराइव किया है वो मैं तुमको यहाँ पर बता देती हूँ. क्या दिया हुआ है कि टी मैक्स जो है ये टी मीन का एवरेज 20% से ज़्यादा है. ओके, सो इट इज़ 20% ज़्यादा है टी मीन प्लस उसका 20% ऑफ टी मीन, ऐसा दिया हुआ है ना क्वेश्चन में कि द मैक्सिमम टॉर्क बीइंग 20% ग्रेटर दैन द मीन टॉर्क. सो अगर हमारे पास टी मीन है तो टी मीन प्लस उसमें और उसका 20% एक्स्ट्रा ऐड करो, सो ये जो मिलेगा हमको टी मैक्स का वैल्यू मिलेगा. ओके, नाउ इसे मैं फॉर्मूला बना लेती हूँ. 20% मीन्स 20 डिवाइड बाई 100 टी मीन, और इट इज़ टी मीन प्लस 20% मतलब 0.2 टाइम्स ऑफ टी मीन. सो 1 टी मीन प्लस 0.2 टी मीन विल बिकम 1 प्लस 0.2, दैट इज़ 1.2 ऑफ टी मीन. ओके, सो कभी भी ये रिलेशन अगर दिया हुआ है कि कितना परसेंट ग्रेटर है तो तुम इस तरह से उसको लिख सकते हैं. अगर 30% दिया हुआ रहेगा तो ये बन जाएगा रिलेशन 1. मैक्स एज 1.3 टी मीन. अगर ये 50% दिया हुआ है तो 1.5 टी मीन. ओके, सो ये डेरिवेशन ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए है. ओके, सो टी मैक्स और टी मीन का जो रिलेशन दिया हुआ है उससे हम लोगों ने गिवन डेटा में ये लिखा है कि टी मैक्स इज़ इक्वल टू टी मीन 1.2 टाइम्स ऑफ टी मीन. ओके, नाउ टाउ फॉर द शाफ्ट मटीरियल इज़ गिवन 63 megapascal. द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज़ गिवन 1.4. नाउ इट इज़ गिवन इन डिग्री. जब हम न्यूमेरिकल में इसको रखते हैं तो हमको रेडियंस में रखना होता है, सो विल कन्वर्ट दिस इन रेडियन. 1.4 इंटू पाई डिवाइड बाई 180, बिकॉज हमको डिग्री टू रेडियन में अगर कन्वर्जन करना है तो हमको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है पाई से एंड डिवाइड बाय 180. ओके, सो मैं इसको सॉल्व करती हूँ. 1.4 इंटू पाई डिवाइड बाय 180, इट कम्स 0.0244 radians. Okay, now it is in radian. Now L is 3 meter. Okay, जब हम फॉर्मूलेज में रखते हैं तो जनरली मिलीमीटर में रखते हैं, तो दिस विल बी 3000 millimeter. नाउ द इनर टू आउटर डायमीटर का रेशियो दिया है बिकॉज इट इज़ अ हॉलो शाफ्ट. ओके, सो एक के होता है स्मॉल लेटर के 3 डिवाइड बाई 8, एंड इसको भी हम कैलकुलेट करके रख देंगे तो हमको न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करने के टाइम आसान पड़ता है, तो मैं वो भी कन्वर्जन करके रखती हूँ 0.375.
ओके एंड जी इज़ गिवन 84 गीगा पास्कल। ना हम जनरली जब न्यूमेरिकल्स में रखते हैं तो मेगा पास्कल में रखते हैं। सो मैं इसको इंटू 10⁻³ करूँगी तो ये मेगा पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, गीगा पास्कल टू मेगा पास्कल। ओके नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्राइटेरिया दैट इज़ द बेस्ड ऑन द strength of shaft, but before that we need T max to put it in the formulae. Okay, so where we'll get the T max? If the power and RPM is given, from there we can get the formula. So since we know that power is equal to 2 pi n T is divided by 60. अभी यहाँ पे हम प्लेन T लिखते थे, बट ये इक्वेशन ऐसा है जिसमें मैक्सिमम एंड मीन मेंशन किया हुआ है, तो ये T जो होता है एक्चुअल में T मीन होता है। ओके अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो जो ये टी होता है वही टी मैक्स हम लेते हैं, बट अगर मेंशन किया है तो इस फॉर्मूले का जो टी है दैट इज़ टी मीन। ओके सो वी नीड टी मीन, सो आई राइट टी मीन इज इक्वल टू 60 टाइम्स ऑफ पावर डिवाइड बाय 2 पाई एन। मैंने यहाँ क्या है इस इक्वेशन को एडजस्ट किया है, तो 60 इंटू पावर इज 600 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2 पाई, RPM is 110. Okay, so we'll put this in the calculator. 60 इंटू 600 इंटू 1000, 10⁻³ को मैं जनरली 1000 भी लिखती है, डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 110. Okay, so from here we'll get 52.087 into 10⁻³. So I'll write T mean as 52.08 into 10⁻³ दिस इज़ इन न्यूटन मीटर, बिकॉज वैट्स है ना तो ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर। ना इफ़ यू वांट टू पुट दिस इन फॉर्मूलाज जो है वो हम न्यूटन मिलीमीटर में रखते हैं, तो यू कैन राइट 52.08 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मिलीमीटर। मैंने क्या किया है मीटर टू मिलीमीटर में इसका कन्वर्जन यही कर दिया, बिकॉज आगे जो फॉर्मूलेज है मेगा पास्कल जो है उसमें भी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसका कन्वर्जन कर दिया है। ओके नाउ वी कैन अप्लाई द फर्स्ट बेसिस, डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। ओके डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। ओके सो उसके लिए मेरा फॉर्मूला होता है, सॉरी टी मीन से हमको टी मैक्स भी निकालना भी बाकी है ना, यहाँ पे ये टी मीन आ गया है, क्योंकि मैं आगे जो फॉर्मूला रखने जा रही हूँ वो टी मैक्स का फॉर्मूला है, इसलिए मैं यहाँ पे ही मैक्स भी निकाल लेती हूँ। टी मैक्स जो है उसका रिलेशन है 1.2 टाइम्स ऑफ टी मीन। ओके सो 1.2 टाइम्स ऑफ 52.08 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मिलीमीटर। ओके can you see these? Okay, you can see 1.2 times of 52.08 62.496, so T max आ गया मेरा 62.496। ये सब तुम लोग खुद से ट्राई करना है, सिर्फ मेरा देख के कॉपी करने में कोई मतलब नहीं है। ट्राई ऑन योर ओन, अपना कैलसी यूज़ करो एंड ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। ओके सो टी इज़ इक्वल टू π/16 टाउ इंटू डी क्यूब होता है। नाउ इट इज़ अ हॉलो शाफ्ट, सो इट विल बी डी आउटर क्यूब 1 - k⁻⁴। ओके सो फ्रॉम हियर विल गेट वन डायमीटर मतलब आउटर डायमीटर मिलेगा, और उससे हम रिलेशंस के रेशियो से इनर डायमीटर भी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके नाउ टी इज़ 62.496 इंटू 10⁻⁶, इट इज़ इन न्यूटन मिलीमीटर, इज इक्वल टू π/16 इंटू टाउ कितना दिया हुआ इक्वेशन में 63 मेगा पास्कल इट इज़ गिवन, इंटू डी आउटर क्यूब 1 - के आ गया है मेरा 0.375⁴। ना मैं जनरली इस टाइप के कैलकुलेशन में क्या करती हूँ कि डी आउटर क्यूब को छोड़ के ये बाकी जितना है ये कैलकुलेटर में मैं सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है, और उसके बाद उसको इसके डिनोमिनेटर में लेकर जाती हूँ। ये जो वैल्यू है इसके डिनोमिनेटर में लेके जाती हूँ तो मुझे डी आउटर क्यूब मिल जाता है। उसके बाद मैं फाइनल आंसर का क्यूब रूट लेती हूँ, ठीक है। मैं इसी तरह से तुमको यहाँ पे करके बताऊँगी। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 0.375⁴ ये आ गया आंसर। 1 माइनस आंसर मुझे मिल गया ब्रैकेट इंटू 63 इंटू पाए
इंटू 63 इंटू पाई इज इक्वल टू, ना इस आंसर का डिवाइड बाय 16, मतलब डी आउटर क्यूब छोड़ के बाकी जितना है ये सब मैंने कैलकुलेट कर लिया, मुझे ये मिला। ओके, ना मुझे इसको डिनोमिनेटर में ले जाना है इसके। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, उसको ब्रैकेट में डाल देती हूँ, 62.496 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय आंसर। आंसर में क्या है मेरे पास, ये वाला फैक्टर है, तो मैंने उसको डिवाइड बाय आंसर कर दिया, तो मुझे मिल गया। नाउ ये जो मेरा फाइनल आंसर है इसका मैं क्यूब रूट लूँगी, शिफ्ट के फंक्शन से वो ऑपरेट होता है, ठीक है। तो मुझे मिल गया डायमीटर ऑफ द शाफ्ट दैट इज़ 172.73। सो डी आउटर मिल गया 172.73 मिलीमीटर। ओके, नाउ वी कैन राउंड दिस। यहाँ पे राउंड नहीं भी करते तो चलता है, बट अब मैं ये वाले क्वेश्चन में राउंड करके बता रही हूँ। 174 अगर डी आउटर है, सो डी इनर क्या रहेगा, डी इनर टू डी आउटर का जो रेशियो है, डी सिंस डी इनर अपॉन डी आउटर जो ये दिया हुआ है 0.375, ठीक है। सो डी इनर मिल गया मुझे 0.375 इंटू डी आउटर, एंड डी आउटर इज़ 174, तो 0.375 इंटू 174। ओके, मुझे मिल गया 65.25। जनरली जो आंसर्स हमको इम्पेरिकल रिलेशन से मिलते हैं हम उसको राउंड नहीं करते, 65.25 मिलीमीटर। तो मुझे डी इनर एंड डी आउटर यहाँ से इतना मिल गया है। ओके, नाउ these values are from one criteria and that is based on the design of shaft. Okay, now we'll consider the design of shaft based on the rigidity. Okay, now second criteria, ये हमको इसलिए करना पड़ा है बिकॉज जो गिवन डेटा है उसमें वैल्यूज़ दी हुई है वो सारे फॉर्मूलेज की। सो डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट बेस्ड ऑन रिजिडिटी। ना अगर तुम लोगों ने मेरे इसका जो थियरी लेक्चर था उसका अच्छे से नोट्स बनाया रहेगा तो तुम्हारे पास उसका फॉर्मूला रहेगा कि बेस्ड ऑन रिजिडिटी के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट बेस्ड ऑन रिजिडिटी, ठीक है। अगर तुम लोगों ने अच्छे से नोट्स बनाई रहेगी उसकी तो तुमको काम आएगी अभी यहाँ पे, ठीक है। बेस्ड ऑन रिजिडिटी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले, T अपॉन जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। ओके, सो आई राइट डाउन दैट फॉर्मूला, T अपॉन जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। इसमें जी थीटा एल ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, टी भी हमारे पास है, और जे के अंदर आते हैं वो डायमेंशंस जो हमको कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ जे जो है ये क्या होता है, ये मैंने तुमको एकदम स्टार्टिंग में के फॉर्मूलेज में बताया था। व्हाट इज़ जे, जे इज़ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ फॉर हॉलो शाफ्ट इट इज़ पाई बाय 32 डी आउटर रेज टू 4 माइनस डी इनर रेज टू 4। सो सिंस जे इज़ पाई बाय 32 d outer raised to 4 minus d inner raised to 4. Okay, we'll use this form, we'll put this in formula. t का वैल्यू जो है वो कितना है 60, I'll put all the values in this formula, 62.496 into 10 raised to 6 डिवाइड बाय j है, j की जगह पे मैं रख देगी पाई बाय 32। ओके, मैं यहाँ पे इसको अगर थोड़ा एडजस्ट कर लूँ तो ये फॉर्मूले में डी इनर और डी आउटर एक साथ दो अननोन है, तो उसके अंदर एक ही अननोन को हम रखते हैं, दैट इज़ 5/32। अगर मैं डी आउटर रेज टू 4 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ब्रैकेट में बचता है 1 माइनस डी इनर अपॉन डी आउटर, और ये पूरे का रेज टू 4। ओके, ना डी इनर अपॉन डी आउटर इज़ नथिंग बट के, एंड के का वैल्यू इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सो मैं जे की जगह पे लिख सकती हूँ जे एज π/32 डी आउटर रेज टू 4 1 माइनस के रेज टू 4। ओके, लाइक दिस, ठीक है। सो मैं जे लिख देती हूँ π/32 डी आउटर रेज टू 4 1 माइनस के रेज टू 4 इज इक्वल टू जी। नाउ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन। कितना दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इट इज़ गिवन 84 गीगा पास्कल। सो मेगा पास्कल में 84 इंटू 10⁻³ इंटू थीटा को हमने रेडियंस में कन्वर्ट किया था, ठीक है। और रेडियंस में कन्वर्ट करने के बाद उसका कितना आंसर मिला था, इट इज़ 0.0244, 0.0244 इट इज़ इन रेडियंस डिवाइड बाय एल जो है वो 3 मीटर में दिया हुआ था, मुझे मिलीमीटर में चाहिए तो मैं उसको 3000 पुट कर दिया। ओके, now I have put all the values in the formula, you can see it very well. Okay, now in this d outer only is the diameter is only
अननोन। ओके, ना मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सिंपल इक्वेशन बना देती हूँ। 62.496 इंटू 10⁶ इंटू 3000 इज इक्वल टू π/32 इंटू d आउटर रेस टू 4 1 माइनस k रेस टू 4 इंटू 84 इंटू 0.0244 इंटू 10⁻3। ओके, मैंने क्या किया है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है। एक बार चेक कर लो अच्छी तरह से, सारी वैल्यूज़ कवर हुई है नहीं, एक भी अगर मिस हो गई विल गेट द रॉन्ग आंसर्स। ओके, इसके बाद क्या करना है तुमको, इसके बाद सिंपली वी हैव टू यूज़ आवर कैलकुलेटर। ओके, ना कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यूज़ तुम डाल के यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे मैंने k का वैल्यू नहीं रखा है और k का वैल्यू तुमको पता है क्या है, इट इज़ 0.375 है। तो वो यहाँ पर डाल के वी कैन ईजीली कैलकुलेट दिस न्यूमेरिकल, वी कैन ईजीली गेट द डी आउटर। ओके, नाउ विल सॉल्व दिस। ओके, मैंने क्या किया है यहाँ पे, ऐसे मैं जनरली करती नहीं हूँ बट फॉर तुम लोगों को समझने के लिए मैंने इस तरह से किया है। मैंने क्या किया है यहाँ पे 62.496 इंटू 10⁶ इंटू 3000 यहाँ पे मैंने अलग से मल्टीप्लाई कर दिया है। 62.496 इंटू 3000 इंटू 10⁶। ओके, मेरा आंसर आया है 1.874 इंटू 10⁻11, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, ना यहाँ ये साइड में मैंने क्या किया है, 0.375 इसका वैल्यू है k का, तो मैंने वो पहले कैलकुलेट किया है। 0.375 है वो। ओके, सो ये मैंने इस तरह से कर लिया 1.375 ना 1 माइनस आंसर, तो मुझे मिल गया ये ब्रैकेट, ये छोटे से ब्रैकेट के अंदर का। ना मैंने जितने न्यूमरेटर है वो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इंटू पाए इंटू 84 इंटू 0.0244 इंटू 1000, 10⁻3 को मैंने 1000 लिखा है यहाँ पे। ओके, दिस डिवाइड बाय 32, तो मुझे आंसर मिल गया 197.239। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, अब मुझे इसके न्यूमरेटर में इसको लेकर आना है। ओके, सो डी आउटर रेस टू 4 जो रहेगा ये है 1.874 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाय 197.239। ओके, ये डी रेस टू 4 आ जाएगा मेरे पास। ओके, तो मैं वहाँ पे लिख देती 1.874 इंटू 10⁻4, सॉरी 10⁻11 है ना वो, फिर से करते हैं इसको 1.874 इंटू, सॉरी 874 है ना, 874 इंटू 10⁻11 दिस डिवाइड बाय 197.239, तो मुझे आंसर मिल जाता है ये। बट इस आंसर का मुझे 4th रूट चाहिए। ओके, ना 4th रूट के लिए यहाँ पे देखो ये की है जो शिफ्ट से ऑपरेट होती है, ये वाली की, तो मेरे को 4th रूट चाहिए, तो मैं लिखेगी 4 शिफ्ट से दिस रूट, यू कैन सी इट प्रॉपरली। इसका मुझे आंसर का ये 4th रूट चाहिए, तो मुझे डी आउटर मिल गया यहाँ से 175.56 मिलीमीटर। नाउ आई विल राउंड इट टू 176 मिलीमीटर। ये मुझे डी आउटर मिल गया है। नाउ डी इनर टू डी आउटर का क्या रिलेशन है, मुझे डी आउटर से 0.375 को मल्टीप्लाई करेगी 176 इंटू 0.375, आई विल गेट डी इनर। सो डी इनर मिल जाता है मुझे 62.83 मिलीमीटर। ठीक है, नाउ इफ विल कंपेयर दीज टू वैल्यू इन दिस दी आउटर इज 174 एंड हियर दी आउटर इज 176, so safer values will be this. So our final answer will be this, which is obtained from the rigidity basis. Okay, so this will be our, these are the safe values, these are the safe values of diameter of the shaft. So ये तुम्हारा फाइनल आंसर ये बन जाएगा। ओके, यही पूछा था डायमीटर्स ऑफ द शाफ्ट, डिज़ाइन करना था हमको शाफ्ट को। ये क्वेश्चन आया है 6 मार्क्स के लिए, यू विल गेट 3 मार्क्स फॉर द बेसिस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस फर्स्ट बेसिस ऑन द शाफ्ट, बेसिस ऑन द स्ट्रेंथ, एंड सेकेंड you will get rest of the marks on for the basis of rigidity. Okay, so go through it, try on your own, try to solve, and if you have any doubt you can message me on WhatsApp, personally message. Okay, कोई भी डाउट है तो, and I'll try to take all these numericals
मीन्स इस टाइप के जो दूसरे न्यूमेरिकल्स है ऑन द डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट एंड डिज़ाइन ऑफ की, आई विल टेक ऑन योर ऑनलाइन lecture also. So simultaneously with me you can also solve, and if you will have any doubt you can ask me over there. Okay, so all the best for all these numericals.